بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، میں آپ کے لیے آج ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ غیر احمدی مسلمانوں کے اندر جب کوئی غیر مسلمان داخل ہوتا ہے، یعنی وہ ان کا اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ کس طرح کا غیر انسانی سلوک کرتے ہیں. اور وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ان کے اس غیر انسانی سلوک اور بد کردار کی وجہ سے جو اس نے ان میں آ کر دیکھا، کس طرح غیر مسلمان جو ہے ان کے لیے اسلام کو قبول کرنے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے. تو آئیے یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کو دھیان سے دیکھیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. میں نے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو کیسا پایا یا مسلمانوں کا رویہ میرے ساتھ کیسا رہا. تو شروع میں جب میں نے اسلام قبول کیا سن 2003 20 نومبر 2003 کو، بہت سارے مسلمان دوستوں نے، جتنے بھی میرے واقف تھے، جن کو بھی پتہ چلتا تھا، واقف تھے، نہیں واقف تھے، جن لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ نیا مسلمان ہے، اس نے یعنی کہ مسیحیت میں ایک مقام رکھتا تھا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے. بہت اتنا خوش ہو کے مجھے گلے لگاتے تھے. آج یہ یاد رہے کہ آج یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ بہت سارے مسلم دوستوں کے اصرار پر بنا رہا ہوں تاکہ میں اپنی خود نوشت بیان کر سکوں یا مسلمانوں کا جو دین کے متعلق مسلمانوں کی سوچ ہے، فکر ہے یا وہ ورک کر رہے ہیں، ان کا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور شاید کسی مسلمان کی غیرت جاگ جائے. تو یہ خوشی مسلمانوں کی یا جتنے بھی مجھ سے لوگ ملے 13 سال میں 13.5 سال میں ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمانوں سے میری ملاقاتیں ہوئی، جن کے ساتھ میری بہت نامی گرامی علماء کرام بھی ہیں ان میں، جن کے ساتھ میری صحبت رہی، یعنی کہ جو میرے بہت کلوز رہے. تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا مگر میرے لیے کیا کچھ نہیں. کیسی بات؟ خوش بہت ہوئے، مبارکبادیں دی، بہت اچھا یعنی کہ اچھا رسپانس دیا، اچھے الفاظ دیے، مگر کیا کچھ نہیں. اب دیکھیں، محنت کرنا میرا کام. میں نے محنت کی، جہاں مجھے جاب ملی، جہاں مجھے مزدوری ملی، میں نے وہ کی. اس میں نے اپنے لیے جو پس انداز کیا، جتنا میں نے بچایا، جتنا میں نے کھایا، جتنا میں نے گزارا کیا. تو مجھے ہمیشہ 4 کلاس جابز ہی ملی. کوئی اچھی جاب، حالانکہ میں کر سکتا ہوں اچھی جاب کے لیے، میری کاش بھی تھی، میں نے اپلائی بھی کیا، ملی بھی، مگر وہاں پر جو ان کی کچھ ایسے معاملات تھے کہ وہ کچھ اچھی جابز میں کہ وہاں پہ کرپشن یا الٹی سیدھی حرکتیں یا ایسے معاملات. مثال کے طور پہ ایک ہوٹل کی مینجمنٹ ملی. اب ہوٹل میں، وہ ہوٹل مین رہائشی ہوٹل میں، تو وہاں اس کی مینجمنٹ میں یہ تھا کہ زنا اور شراب کا ساری ذمہ داری اپنی تھی. تو ایسے کاموں سے میں ہمیشہ دور رہا ہوں. اور کئی کنسٹرکشن کمپنیوں میں ملی، وہاں پر بھی یہی تھا کہ 2 نمبر کام کرنا ہے. گاہک کو یا کسٹمر کو کچھ اور پتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور ڈیل ہے، ٹھیک ہے، ڈال کچھ ہم کچھ اور رہے. اس لیے میں نے ہمیشہ ورکر رہنا ہی پسند کیا، ورکر رہنا ہی، مزدور رہنا ہی پسند کیا، تاکہ میری وہ ذمہ داری نہ بنے جو میں 2 نمبر کام میری ہی ذمہ داری میں ہو، ایسا نہ ہو. تو اس لیے میں ہمیشہ نچلے درجے میں ہی، تاکہ میں کم سے کم کسی کے گناہ کا ذمہ دار بن سکوں. مگر بہت سارے مسلمان دوستوں نے، علماء کرام نے بھی مجھے کہا کہ یار آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا شادی تو سنت مبارکہ ہے اور شادی واجب بھی ہے. اور میں نے کہا بھائی شادی اگر کوئی رشتہ دے گا تو میں کروں گا. اب میں کسی درخت سے تو کرنے سے رہا، کسی دیوار سے تو کرنے سے رہا، کسی پہاڑ سے تو کرنے سے رہا. اب کوئی مسلمان بڑھ کر رشتہ دے گا. اب ہماری سوسائٹی ایسی نہیں ہے، پاکستان کی سوسائٹی، کہ میں کسی کو بھی کہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، اپنی بہن کا رشتہ دے دیں. اب اس میں بہت سارے مسلمان دوست میرے بہت قریبی
दावत इस्लामी के भी, दावत तबलीग के भी, यानी कि रायमंड जमात वाले भी, दावत तबलीग वाले भी, दावत इस्लामी वाले भी, जामिया कासिया अपना जमात उल दावा वाले भी, और यानी कि हर मसलक के अपना जमात इस्लामी के दोस्त भी, ये बहुत अच्छी सतहों पे पोश एरियाज के, ये नहीं कि कच्ची कल आबादियों के, पोश एरियाज के, लाहौर में मॉडल टाउन डिफेंस के, कराची में डिफेंस एरिया के, ठीक है, पोश एरियाज के, तो इन दो ये मेरे साथ बहुत क्लोज रहे। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए करते हैं। अब वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब वो लोगों को क्या नेकी की दावत दे रहे हैं कि आप नेक काम कर लें। ये हमारा न्यू मुस्लिम भाई है, वो भाई आप अपने घर में नहीं देख सकते। मैंने कई दोस्तों को फिर डांटा मस्जिदों में बैठकर, क्योंकि ऐसे दोस्तों के साथ मस्जिद में ज्यादा राब्ता होता था, तो भाई हमने फलां जगह, मैं कहता था यार मैं तुम्हें जाती तौर पर जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे घर में इतने रिश्ते मेरे हम उम्र है, यानी कि मुझसे 2 साल छोटे हैं, आपकी बहन वगैरह, ये वो वाज़ेह अल्फाज में तो नहीं कहता था कि मैं जानता हूं कि आपके फैमिली में मेरे हम उम्र या मेरे जो करीब हैं वो रिश्ते मौजूद हैं, मगर आप लोगों को ही क्यों दावत देते हैं कि ये नेकी तुम करो, तुम ये नेकी क्यों नहीं करते? तो ऐसे वो फिर यही होता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होना शुरू हो जाते थे। तो कई लोगों को मुझे झाड़ना पड़ा। अब जो गैर मुस्लिम हैं, ईसाई, अब हमारे मुसलमान दोस्तों की सूरत हाल ये है कि हमारे मुसलमान ये बैठे बिठाए हर चीज मांगना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं यार आप इतना काम कर रहे हैं दीन का, तो आप जो वीडियोस हैं वो इतने असरअंदाज हैं, आपने बहुत कम, यानी कि ये 13 साल में मैंने सिर्फ 200 लोगों को कलमा पढ़ाया, तो आपने बहुत कम लोगों को कलमा पढ़ाया। मैं उनको कहता हूँ यार मैं हजारों को पढ़ा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। क्रिश्चियन दोस्त, क्रिश्चियन लोग या गैर मुस्लिम, हिंदू गैर मुस्लिम जितने जो मेरे रास्ते में हैं और इस्लाम में आना भी चाहते हैं, इस्लाम को अच्छा भी समझते हैं, अकायद को, और वो ये भी समझते हैं कि मसीही अकायद और मसीही इमाल इंतहाई गलीज है। हिंदू ये समझते हैं कि हिंदुओं के अकायद और इमाल गलीज है और इस्लाम ही हक है, मगर जब वो मुझे देखते हैं कि मैं 13 साल में मुसलमानों ने मुझे किस दर्जे पे रखा हुआ है, यहां तक मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि मेरा एक 2010 में एक बहुत बड़ी तहरीक पाकिस्तान में चल रही है और उसका टीवी चैनल भी है। तहरीक का नाम नहीं ले रहा, टीवी चैनल से आप पहचान जाए कि वो कौन सी तहरीक होगी। तो उस तहरीक ने मुझे इत्काफ से उठाया, नफली इत्काफ में कर रहा था, तो सुन्नत इत्काफ शुरू होने वाला था, उन्होंने कहा जी आप सुन्नत इत्काफ नहीं कर सकते। मैं कोई बात नहीं। अब वो नजदीक उनका ही मरकज या मस्जिद मेरे नजदीक थी, तो मैं यानी कि 20वें रमजान की मगरब की नमाज मैंने अफ्तार अपने घर में किया, अपने रिहाइश पर किया, क्योंकि मैं मकान किराए का होता है, मेरा जाती तो होता नहीं। तो मैंने इफ्तार किया, इफ्तार करके मैं उस मस्जिद में गया हूँ नमाज पढ़ने के लिए। तो वहां सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा ये आपका मस्जिद में दाखिला बंद है। मैं फिर कुछ फासले पर मस्जिद में गया हूँ जहां पर मुझे आखिरी रकात मिली। वापस आकर मैंने सिक्योरिटी वालों से, उनके बड़ों से रब्ता किया, हाँ जी मुझे ये बताएं कि क्यों मेरा दाखिला बंद किया गया। वो जी बस ये है वो है। 3 साल में उनके साथ लड़ता रहा हूं कि मुझे सिर्फ वजह बताओ, आपको कोई बदगुमानी हुई, वो बदगुमानी बता दे, मैं क्लियर कर दूं। आपको कोई ऐसी इत्तला आई कि मैं कोई नाउजुबिल्लाह कोई उल्टा सीधा काम करता हूं या मैं आपके मसलक से हटकर यहां पर प्रीच करता रहा हूं, कोई चीज बता दे। मैंने आपके मरकज में रहकर कोई ऐसी हरकत की, कोई मुझे एविडेंस दे, कोई सबूत दे, कोई चीज अगर आपको बदगुमानी भी हुई वो भी मेरे साथ शेयर करें। मगर 3 साल में मैंने उस मरकज के, उस जमात के, उस तंजीम के बड़ों को, जितने भी जिम्मेदार थे, सबको मैंने लेटर लिखे, ईमेल्स किए, जाती तौर पर मिला, मगर 3 साल में उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, और उल्टा मस्जिदों में खड़े होकर मुझसे झूठ बोला। ये है मुसलमानों का करैक्टर, और वो मुसलमानों को जो अपने आप को दीन के दावेदार, दीन के ठेकेदार कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं आम मुसलमान की नहीं, जिसको बेचारे को सिर्फ कलमा भी बड़ी मुश्किल से पढ़ना आता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। फिर बाद का ये मेरे मुस्लिम दोस्तों की डिमांड पर मैं ये बना रहा हूं, मैं क्रिश्चियन दोस्तों के, हालांकि ये वीडियोस मंजरे आम पर आना खुद हमारे लिए नुकसानदेह है। अब होता क्या है कि हमारे मुसलमान
न्यू मुस्लिम जब आता है तो उसको बड़ा खुश से गले लगाते हैं, बड़ा उसके साथ। ये खुशी कितने मिनट की होती है? 15 मिनट, 10 मिनट की। अब मुसलमान जो एक बंदा आ गया आपके पास, उसने अपने लाजत गलीज दीन को छोड़ा, इस्लाम जैसा सच्चा दीन अपनाया, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप सिर्फ उसके साथ गले मिलो, आप उसके साथ अच्छे 2-4 बोल बोले, मुबारकबाद दें और घर चले जाए। और भाई उसके बहुत सारे मामलात होते हैं। अब मैं जब मुसलमान हुआ, अब मेरे हिस्से में, मेरे विरासत में, यानी कि मेरे वालिद की तरफ से 5 मरले का मकान है। मेरे भाइयों ने नहीं दिया, ना मैंने अपने भाइयों से लड़ाई की, ना झगड़ा किया, बस ठीक है यार। जब वो उनका मेरे साथ लिंक ही नहीं, वो मेरे साथ नहीं मिलना चाहते, तो विरासत भी गई खूब खाते में। अब वालिद की तरफ से जो भी विरासत खत्म, मैं रोड पर। अब जो मैं पहले जॉब कर रहा था, मसीहों के एक अदारे में जॉब कर रहा था, वो मेरी जॉब भी खत्म। बहुत अच्छी जॉब थी मसीहों के एक अदारे में, ठीक है, वो जॉब भी मेरी गई। उसके बाद मैंने जॉब ढूंढी और बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि मुझे उस वक्त एक बहुत अच्छी जॉब मिली, मगर उस जॉब में जो कुछ था, जो मैंने आपको बताया कि वो लोगों के गुनाहों के जिम्मेदार हम बनते थे, तो इस वजह से वो जॉब भी मैंने 1-1.5 महीने में, जब मुझे समझ आई कि यार ये तो सारी जिम्मेदारी हम पर पड़ती है, और उलमा इकराम से भी मैंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा ये जॉब ठीक नहीं, तो मैंने छोड़ दी। तो मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 200 में से कुछ नौजवान ऐसे आए, मेरे करीबी नौजवान थे, उनको फिर मैंने कुछ ऐसा निज़ाम बनाया कि यार मैं अपना निज़ाम घर बार बनाऊं। मैंने मजदूरी में से पैसे बचाने शुरू किए, अपनी सेविंग की, बचत की। तो अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि शायद मेरे नसीब में सेटिंग नहीं थी, मेरा ये यानी कि एक सिस्टम बन जाता। तो कुछ नौजवानों ने इस्लाम कबूल किया, उनको मैंने फिर, जाहिर है मैं तो अब पक्का हो गया था, उनको मैं दुनिया के ठोकरों में नहीं देखना चाहता था। तो मैंने उनको किसी को कारोबार करवाया, किसी की शादी में, क्योंकि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कई इलाकों में गुर्बत है, वहाँ पर वो शादी के अखराजात देकर शादी वगैरह की तरकीब बन जाती है, वो बना दी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुझसे हो सका, और यहाँ ये वीडियोस जो मैं तैयार कर रहा हूँ, इसमें किसी मुसलमान का या किसी गैर मुस्लिम का या किसी दोस्त का 1 रुपए की इन्वेस्ट नहीं होती। ये सिर्फ जाती तौर पर नेट का जो खर्चा है, महीने का जो पैकेज होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, अपने बहुत मुश्किल से सोच समझ कर वो बचतें कर करके मैं पूरा करता हूँ। और अगर मेरा लैपटॉप बिक जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि न्यू मुस्लिम दोस्त, जो मेरे न्यू मुस्लिम जिनको मैंने कलमा पढ़ाया, उनके डिलीवरी के मामला हो जाते हैं, कुछ ऐसे मामला, बीमारी आ जाती है, अब फौरी तौर पर उनको रकम की जरूरत होती है, मेरे पास नहीं होती, मुझे अपना ज़ाहिर है लैपटॉप बेचना पड़ता है और सारी चीज़ें बेचनी पड़ती है, मोबाइल बेच देता हूँ, ये वो इधर उधर, उनका मसला हल कर देता हूँ। फिर मेरे लिए कितनी परेशानी होती है मुझे पता है, किस्तों पे खरीदा, किस्तों पे खरीद कर और जैसा भी मिला, ठीक है। अब कई दोस्त मेरे कहते हैं कि जी आपकी वीडियो का रिजल्ट, भाई मेरे पास वसाइल हैं, उसी के हिसाब से कर रहा हूँ। कई दोस्त मुझे कहते हैं जी आपने कई वीडियोस में कहा मैं इंग्लिश में काम कर रहा हूँ, मेरे 200 से ज्यादा बयान इंग्लिश में तैयार पड़े हैं, इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट वगैरह किए हुए। अब मेरे पास वसाइल ही नहीं, क्या करूं मैं? तो बात यह है कि मैंने तो अपने वसाइल के हिसाब से काम करना है। और मेरे दोस्तों का, मुस्लिम दोस्तों का मुझ पर दबाव होता है कि आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर आप इंग्लिश में करें, आप इस जबान में करें, ऐसे करें वैसे करें। भाई आप ये भी तो देखो कि मेरे पास वसाइल कहाँ है। जो दोस्त मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बेचारे उनके पास कुछ है नहीं। जो दोस्त कुछ करना चाहते हैं उनके पास कुछ है नहीं, और जो कर सकते हैं उनको इसकी परवाह ही, जो कर सकते हैं उनको इसकी परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं क्या है, मसीहत क्या है, इस्लाम क्या है, तबलीग क्या है, कुछ भी नहीं है, उनको इस चीज की परवाह ही नहीं। अगर है तो अपने मसलक की। मुसलमान ये नहीं, तो मुसलमान ये मुल्क पाकिस्तान में कितने अदारे चल रहे हैं, कितने जामियात चल रहे हैं, कितने मदरसे चल रहे हैं, सिर्फ किसके चक्कर में? मसलक के चक्कर में। कभी भी देवबंदी बरेलवियों को जल्दी चंदा नहीं देता, बरेलवी कभी देवबंदियों को जल्दी चंदा नहीं देते, जिनको थोड़ी बहुत समझ होती है। अब मैं किसी मसलक से जुड़ जाऊं, मिसाल के तौर पे बरेलवियों के साथ मिलकर मैं देवबंदियों को, वहाबियों को, मदूदियों को अपना गुस्ताख कहना शुरू कर दूं और उन पर ऐसे फतवे जड़ना शुरू कर दूं, बरेलवी मुझे सर पे उठा लेंगे। देवबंदियों के साथ जुड़ जाऊं और देवबंदियों के साथ मिलकर बरेलवियों को मुशरक करार देना शुरू कर दूं, देवबंदी मुझे सर पे उठा लेंगे। आपको क्लियर कर रहा हूं कि मेरा किसी फिरके के साथ, किसी मसलक के साथ, क्योंकि ना मुझे किसी ने बरेलवी ने बेटी दी है, ना देवबंदी ने दी है, ना वहाबी ने दी है, ना अपना मदूदी ने दी है, तो मैं अब इनके साइड पे होकर दूसरों के साथ क्यों लड़ता फिर?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि मैंने कबूल इस्लाम से पहले कुरान पाक के चारों तराजम ममा तफासिर पढ़ी हैं, सही बुखारी मुकम्मल पढ़ी कबूल इस्लाम से पहले, सही मुस्लिम मुकम्मल पढ़ी कबूल इस्लाम से पहले, इब्ने माजा मुकम्मल पढ़ी कबूल इस्लाम से पहले। जो मुझे दीनी कुतब सीरत की किताबें मुझे जो अवेल होती थी मैं स्टडी करता था, पढ़ता था। अभी मेरी यही रूटीन है, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, मैं पढ़ता रहता हूँ। अब जिसको पता चलता है किसी भी सेठ को कि यार ये न्यू मुस्लिम है, मेरे 50,000 से ज्यादा या 13 साल में 50,000 से ज्यादा ये सेठों ने दबाए हैं, ठेकेदारों ने दबाए हैं पैसे, और न्यू मुस्लिम है, इसने क्या कर लेना है? यानी कि इसकी कौन सी बैकग्राउंड है? मेरी मजदूरी के पैसे दबाए हैं लोगों ने। क्या 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 मैं आप लोगों के सामने रहूं? ये 2011 की बात है, एक बंदे ने कहा जी उसका एक काम था, तो मेरा भी वही शोबा था। उसने कहा यार ये काम 3 साल में होगा, आप कोशिश करके 2 साल में 1.5 साल में खत्म करवाओ। मैं कर सकता था, मैंने रात दिन एक किया, मैं आपको उम्रा करवा दूंगा। सेठ है, एक सुनियारा मार्केट का सदर है वो, तो मैं आपको उम्रा करवा दूंगा। उस उम्रे पे कितना खर्चा था? 85,000 रुपये। मैंने रात दिन काम किया सिर्फ इस वजह से कि चल यार ये उम्रा करवाएगा मुझे। मैंने कोई यानी कि मैंने अपनी जेब से अपने पैसों से अपना पासपोर्ट बनवाया, सारा कुछ किया, अपने कागजात कंप्लीट करवाए। अब उसका काम मैंने 2.25 साल में खत्म करवाया, रात दिन एक करके 2.25 साल में उसका काम कंप्लीट करवा दिया। जबकि वही काम ठेकेदार कह रहा था कि 3 साल में कंप्लीट होगा। तो मैंने ठेकेदार की मुखालफत की, ठेकेदार भी मेरे साथ लड़ता था, यार तू मेरी रोजी में लात मार रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे ये उम्रा करवाएगा। खैर उसने भी मेरी हिमायत की, उसने कहा चल ठीक है यार तो तुझे उम्रा करवा देगा, अच्छी बात है। तो वो काम जब खत्म हुआ, आप बिलीव करेंगे, अच्छा जी देखेंगे अभी मेरे हालात नहीं है तो मैं आपको उम्रा करवाऊंगा। 2 साल में मेरे राब्ते में रहा, 2 साल बाद उसने मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया। ये औकात, सुनियारा मार्केट का वो सदर था। और हाजी साहब जिससे भी मिलता है वो यही कहता है जी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मुझे 3 बार अल्लाह पाक ने अपना घर दिखाया। नहीं यार ये है औकात। और हर साल वो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया वो खैरात में देगे पका बांटने में लगा देता है। ये सूरत है। और उस 2 साल बाद मैं, हालांकि उसने बहुत सारे दोस्तों का, हर बंदे के सामने वो कहता था जी कादरी साहब ने मेरा काम ये जल्दी से जल्दी करवा दिया और बेहतरीन करवा दिया, कादरी साहब ने अपना काम समझ के करवाया। ये हम मुसलमानों की, हमारे दोस्तों की औकात। अब कैसे इस्लाम फैलेगा? अब देखते हो, जलते हो कई मुसलमान मैंने देखे यार, इतने मसीही हजरात हैं, हिंदू हैं, वो इतनी तेजी से पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ओ भाई आप अपने थोड़ी सी तबलीग करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, अपनी कुर्बानी दोगे, इनको कबूल करोगे, ये जो गैर मुस्लिम आ जाते हैं इनको रिश्ते दोगे, इनकी कोई सेटिंग करोगे, इनको स्टैब्लिश करोगे तो आएंगे। नहीं तो होगा क्या? इनमें से गैर मुस्लिमों में से, हिंदुओं में से, ईसाइयों में से कुछ टीमें बनी हुई हैं, वो हर माह रमजान में वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कबूल इस्लाम के और आपको लूटना शुरू कर देते हैं। आप भी बासानी उनसे लूट जाते हो। मैंने कभी किसी से सवाल नहीं किया, आपको ये नजर नहीं आता? मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से सवाल नहीं किया, भूखा भी रहा हूं। मैंने अपना कचरे के डब्बों से निकाल के भी खाना खाया जब मेरा काम नहीं लगता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैंने सवाल नहीं किया। मगर मैंने किया ये सारे अपने, मैं मतलब बराहल से गुजर रहा हूं और गुजरता रहता हूं, मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सवाल नहीं किया। मगर किसी को तौफीक नहीं हुई। जितने भी लोग मेरे जानते हैं, जाहिर है मैं अब भी किसी मुसलमान के साथ ही काम कर रहा हूँ, वो मेरे हालात को भी जानता हूँ। अभी मेरा लैपटॉप खराब हुआ था, मैंने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर अपना साइकिल बेच, मोबाइल बेच, ये वो, हालांकि वो देख रहा था उसने मुझे 1 रुपए का भी उसने नहीं सपोर्ट किया, कोई मसला नहीं ना। मैंने कहा तो ये है, 1-2 बार मेरे सामने बात हुई, मैंने उसकी झाड़ लगा दी। मैंने कहा यार तुम लोग क्या है, सिर्फ बातें चोदना जानते हो। फिर मेरी लैंग्वेज भी ऐसी ही है। तो ये एहतियात करो मुसलमानों एहतियात करो, ख्याल करो। आप तबलीग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि गैर मुस्लिम इस्लाम में आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान, मैं हजारों को लाखों को कलमा पढ़ा सकता हूँ। मुझे पता है मुसलमान और गैर मुस्लिम कलमा पढ़ना चाहते हैं, मुसलमान होना चाहते हैं। मगर जब देखते हैं कि हम 70 रिश्ते तोड़ के आते हैं और मुसलमान हमारे साथ ये करते हैं, हमारे साथ ये हमारी वो वैल्यू होती है, तो वो नहीं आते। मैं एज ए मुसलमान आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप कुछ कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर भी आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो ना यार। इतने भी आप गए गुजरे तो नहीं है, आप नेट यूज कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। मुझे आज तक किसी ने कॉल करके नहीं पूछा
کہ جی آپ کے حالات کیسے ہیں, آپ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں, یہ وہ. حالانکہ مسیح دوستوں نے مجھے کئی بار ہاں یار کوئی مسئلہ ہے تو دس. مسلم دوستوں نے آج تک بھی مجھے پوچھا کہ بھائی آپ دین کا کام کر رہے ہو, آپ کے ساتھ کوئی پرابلمس ہیں کہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات ہی نہیں. اللہ رب العزت آپ کو اسلام کو سمجھنے کی, فرقہ واس